Morning, everyone. I hope you are all equally excited for our next learning session. India's new age fintech platform TradeBox welcome you all to this exclusive webinar on Nifty at 25,000, where to invest, how, from SEBI registered research analyst Mr. Vineet Saxena. My name is Ranjita Srivastav and I will be your host for today's session. Before I hand over the session to Mr. Vineet, just wanted to remind you all to please adhere to event guidelines mentioned in chat box. Keep yourself on mute. In case you have any questions, please ask in chat room. We will have a separate Q&A session in the end. Take best use of this session and learn directly from the experts. So let's get started. Over to Mr. Vineet. Thank you, Ranjita. Hello, everyone. Good evening. Hope you are doing fine. आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और अभी तक स्टॉक मार्केट से बहुत अच्छे तरीके से पैसे कमा चुके हैं. Nifty had rallied from non-stop since 21,000 to 25,000 plus. Now that all you have, I hope you all have earned lots of, your portfolio must be in quite bit of green, and you should be happy about it, isn't it? Let me see who didn't, earn profits from this rally. Is there anyone who didn't actually earn profits from this rally? So I think nobody replied. So I would consider that everybody has earned profits from the rally that Nifty had given in the last 6 months. Okay, before starting, I should introduce myself before starting my webinar. So मैं SEBI registered research analyst विनीत सक्सेना हूँ. रजिस्ट्रेशन नंबर INH 00001385 है. तो मेरा बैकग्राउंड के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ. So I had spent around 21 years in the Indian Air Force. Okay. So basically my careers from, earlier days started with participation in the elite force. 7 साल मैंने उस पे रहा. उसके बाद I got injured and then I was given the accounts department. So वहाँ पे उसके बाद मैं ऑडिट में भी रहा काफी साल. सो बिल्कुल सारे ऑपरेशंस के साथ यूज टू हो गया. I was into auditing as well. So defense operations, that starts with very basic. We have manufacturing at HAL. We have, all the hospitals. We have the messes that act as five-star hotels. Or various defense operations, flying operations. So I have been auditing all these stuffs. So after that, after I retired from Air Force, I was an investment banker for quite a few years. And, I used to handle, trades for various institutions like BlackRock, HSBC, Barclays, और भी काफी बड़े बड़े जो एगॉन हो गया, और भी काफी बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन है उनके लिए भी मैनेज किया. उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपने लिए कुछ करना चाहिए, अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहिए. जो देश सेवा का एक था जज्बा दिल में, उसको लेके आई applied for SEBI registration after passing the NISM certification. And now I am in front of you as a SEBI registered research analyst. So across social media platforms, मेरा काफी
clients है. If you see, I have around 8,500 clients across different platforms. तो ये तो रही मेरी बात. अब आते हैं आप लोगों से, जो अभी डिस्कशन करना है, ये मोर ऑफ अ डिस्कशन देन डिस्कशन टू अप्राइज यू ऑफ द सिचुएशन नाउ. क्या चल रहा है अभी मार्केट में, कैसे हमें और आगे डील करना चाहिए, और किस तरह से हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमें ज्यादा प्रॉफिट यहाँ पे मिल सकता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज के वेबिनार में. So, what is the current market situation now? So, Nifty, it is at all-time high, hovering near the 25,000 mark. ठीक है, कि जितना भी इंडेक्सेस है आप देख लीजिए, निफ्टी मिड कैप हो गया, निफ्टी स्मॉल कैप होगा, निफ्टी आईटी हो गया, कोई भी इंडेक्स उठा के देख लीजिए आप, ऑलमोस्ट अपने हाई पे ही है. ठीक है, और आरएसआई पे भी अगर आप देखेंगे तो इट इज एट लाइक ओवरबॉट कंडीशन में ही है. हालांकि कुछ वॉलेटिलिटी की वजह से आरएसआई थोड़ा डेली चार्ट्स पे डाउन हुआ है, लेकिन वीकली और मंथली चार्ट्स पे अगर आप देखेंगे तो आरएसआई हैज बीन स्टिफ, राइट, लाइक रॉकेट. मोस्टली इंडाइसेस आप देखेंगे तो 70 प्लस दिखेगा आपको. सो इट्स अ प्रिकेरियस सिचुएशन, राइट. अभी लास्ट डिकेड और सो में जो इमर्जिंग सेक्टर्स निकल के आया है, दैट इज लाइक रेलवेज, पावर, डिफेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी, ये सारे सेक्टर अभी हाईली ओवरबॉट है. कहाँ इन्वेस्ट करना है, ऑलरेडी आप अगर इन्वेस्ट करके रह चुके हैं तो इट इज लाइक बहुत अच्छे प्रॉफिट में हो रहेंगे आप. ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे एक सैचुरेशन सा आ चुका है. यहाँ तक कि मेटल और ज्वेलरी सेक्टर में भी आपने काफी रैली देखा होगा लास्ट फ्यू सेशंस में, और लास्ट 1 और 2 मंथ्स में. इस हिसाब से देखा जाए तो मार्केट ना अभी सैचुरेशन पे आ चुका है. कहाँ इन्वेस्ट करना है, किस स्टॉक पे पैसा लगाए, कौन सी सेक्टर पे जाए, क्या चेक करे क्या नहीं चेक करे बिफोर इन्वेस्टिंग, सो दैट हम ऊपर टॉप पे ना फंस जाए, किसी भी स्टॉक के टॉप पे फंस जाए. और हर हर बुल मार्केट जब खत्म होता है तो और क्रैश आता है ना, तब ऐसे ही होता है कि जो भी रिटेल ट्रेडर्स है, जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स है, वो लोग ऊपर फंसते हैं और देन निकलने का मौका नहीं मिलता है. देन अगर अगर हम लोग अगर हम लोग थोड़ा सा भी कॉशियस रहेंगे तो ये सब चीजें अवॉइड कर सकते हैं. पहला चीज मैं बताऊंगा, पहला चीज, जो लोग अच्छे खासे प्रॉफिट में हैं अभी, ठीक है, उनके लिए तो मैं बताऊंगा कि एटलीस्ट यू शुड बुक योर 50% प्रॉफिट एंड रिलीज योर 50% कैश. वो अगर आपका जो प्रॉफिट है वो वर्चुअली देखते रहेंगे तो फिर इसमें मजा नहीं आएगा. सबसे पहली बात है कि आप यू शुड सिट ऑन कैश. दैट शुड बी द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी इन्वेस्टर नाउ. काफी मार्केट भाग चुका है, एंड देन और क्या नहीं करना चाहिए ये पहले देखेंगे, फिर हमें क्या करना चाहिए वो देखेंगे. ठीक है. अच्छा, एक अभिनव खंडेलवाल जी है. You said I did not even know how to apply. Okay. किस चीज के बारे में बोल रहे हैं सर? If you can type it. Stocks in terms of this Nifty investments, Nifty 25,000 stock. निफ्टी निफ्टी 25,000, मतलब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किए, यही बता रहे हैं ना? हाँ यही बता रहा हूँ. कोई बात नहीं. देर इज नेवर, स्टॉक मार्केट हमेशा रहेगा, एंड यू विल गेट ऑलवेज गेट अपॉर्चुनिटीज टू. यहाँ चलान करते हैं इसमें देखे ना 100 के ऊपर. प्लीज कैन यू म्यूट योरसेल्फ. एक बार चेक कर लीजिए अपने आप को, क्या आप लोग सब लोग म्यूट है? ठीक है, तो अभी जो लोग इन्वेस्टेड है उनके लिए सबसे बड़ी सीख क्या हो सकती है?
उनके लिए सबसे बड़ी चीज है कि अभी क्या अवॉइड करना चाहिए। पहला चीज है, न्यूज चैनल्स आप देखना बंद कर दीजिए, बिजनेस न्यूज चैनल्स और फिन और तू इन्फ्लुएंसर्स। तो आराम से पहुंच के थी ना गाड़ी, पेट्रोल डलाया था। प्लीज कैन यू म्यूट योरसेल्फ, आई थिंक अंकित जी। सो अवॉइड लिसनिंग टू फिन इन्फ्लुएंसर्स। जो उनके जो थंबनेल्स होते हैं ना, वो आपको डरा देंगे। ठीक है, निफ्टी क्रैश हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ये जो थंबनेल्स होते हैं ना, इफ इवन बिफोर यू वॉच दैट वीडियो यू आर लाइक स्केर्ड टू हेल। ठीक है, फिर आप वीडियो देखना शुरू करेंगे तो आप क्या होगा, तो आपको ऐसे ऐसे स्टॉक्स दिया जाएगा जो कि एक ही स्टॉक्स, एक ही सेगमेंट के, एक ही सेक्टर के स्टॉक्स आपको बार बार ये न्यूज आ गया इस स्टॉक के बारे में, वो न्यूज आ गया इस स्टॉक के बारे में, अब तो भयंकर तेजी होगी, अब तो ये होगा। ये सब देखना पहले पहले तो बंद करना पड़ेगा। ठीक है, एनी बिजनेस चैनल दैट प्रमोट और शो एक्साइटमेंट, ओवर एक्साइटमेंट अबाउट अ पर्टिकुलर स्टॉक और सेक्टर, उनसे दूर रहिए सबसे पहले तो। हर बार मैं आई हैव बीन इन्वेस्टिंग इन द मार्केट सिंस लास्ट 2 decades। ठीक है, मोर देन दैट। So I know what goes on when market crashes, कौन कौन फंसते हैं ऊपर। तो ये लोग सबसे पहले फंसते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, अवॉइड इन्वेस्टिंग इनटू एक्सपेंसिव स्टॉक्स। एक्सपेंसिव स्टॉक्स भले ही वो कितना भी आपको रैली दे सकता है आगे, दैट डजेंट मैटर। ऑलरेडी वो 3x 4x दे चुका है, दैट डजेंट मैटर। ठीक है, आगे भी 10-15% दे सकता है, डजेंट मैटर। आप गलती से भी उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट मत कीजिए। खास करके रेलवे के स्टॉक्स बहुत है, पीएसयू के कुछ सेगमेंट्स है, डिफेंस सेक्टर, रेलवे सेक्टर आगे भी बहुत अच्छा रिटर्न देगा, बट दिस इज नॉट द टाइम टू इन्वेस्ट। ठीक है, वेट पेशेंटली, वेट पेशेंटली, सही वैल्यूएशन पे आपका आएगा, आप उसी टाइम उसको खरीदिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट भी सेम है, अवॉइड इन्वेस्टिंग इन हाईली ओवरबॉट सेक्टर्स। जितने भी ओवरबॉट सेक्टर्स है आप मान के चलिए कि आप उनको अवॉइड करके चलिए कुछ दिनों के लिए। ठीक है, कुछ दिनों के लिए अवॉइड करके चलिए, आपको फिर से वो अच्छा भाव पे मिलेगा, आप उस टाइम खरीदिए उसको। राइट, अवॉइड टेकिंग पोजीशंस इन हाईली ओवरवैल्यूड स्टॉक्स। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स है जो हाईली ओवरवैल्यूड है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स है जो कि जैसे आयरडा हो गया। ठीक है, फिर कोचिन शिपयार्ड, मैजगॉन डॉक हो गया, नो डेटा पैटर्न्स हो गया, सीएफएफ हो गया, फिर प्रीमियम एक्सप्लोसिव्स हो गया, एचएल भी अभी थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रहा है। फिर आपका बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स है जो पावर सेक्टर के स्टॉक्स है। ठीक है, ग्रीन एनर्जी वाले स्टॉक्स है, काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो चुके हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया है विद रिस्पेक्ट टू द रिजल्ट्स दैट दे आर ब्रिंगिंग आउट। बहुत ज्यादा ओवरबॉट हो चुका है ये सारे सेक्टर्स। ठीक है, उनको उनको कुछ दिनों के लिए अवॉइड कीजिए। दे मे बी गुड, दे मे गिव यू गुड रिटर्न्स फाइनली, आगे चल के देंगे, लेकिन अभी के लिए उनको अवॉइड करना है। स्ट्रिक्टली अवॉइड न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग, न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग मत कीजिए। ठीक है, कोई किसी भी यूट्यूब चैनल में आपको दिखे यार इस कंपनी के अगेंस्ट पे ये न्यूज आ गया, चलो बाई कर लेते हैं, नहीं। ठीक है, आप हमेशा याद रखिए न्यूज इज ऑलरेडी डिस्काउंटेड। मोस्ट ऑफ द न्यूज डिस्काउंट हो चुका होता है प्राइस में। अगर आप घुसेंगे इस मार्केट में उस न्यूज के बेस पे, मतलब 90% चांस है कि पैसा डूबेगा। एंड अगर यहां से कुछ स्टॉक्स रैली कर जाता है 10-15%, 20%, तो आप डोंट सफर फ्रॉम फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। सबसे बड़ी बात है, ये इकलौता एक चीज है जिसमें कि लोग फंसते हैं सबसे ज्यादा, कि अरे यार ये तो सब लोग बोल रहे थे कि ये तो बोल रहे थे कि
जो ये सब सेक्टर अवॉइड करना है, लेकिन अभी तो देखो ये लोग बढ़ रहा है। ठीक है, मिस कर गए, चलो ले लेते हैं अभी। नहीं, मत कीजिए। ठीक है, मत कीजिए ऐसे। वेट कीजिए, पेशेंटली वेट कीजिए। आपको याद होगा, हर एक इंसान, जब ना छोटे थे हम लोग, तब हम लोग क्या करते थे, हम लोग अपने माँ के साथ या तो पापा के साथ या तो बड़े बुजुर्गों के साथ शॉपिंग के लिए जाते थे, मार्केट में जब जाते थे सब्जी भाजी करने जाते थे। फिश चिकन फिश, खास करके बंगालीज, और मैं बंगाली हूँ, तो इसलिए बोल रहा हूँ, फिश भी लेने जाते होंगे तो अच्छा खासा हम लोग बार्गेनिंग करते थे, देखते थे कि मतलब दो दो एक एक दो दो रुपए के लिए बार्गेनिंग होता था, सो दैट वी कैन सेव मनी, वी कैन गेट अ गुड प्राइस फॉर ईच एंड एवरी कमोडिटी, विच एवरी एसेट दैट वी बाई। ठीक है, तो वैसा बन जाइए अभी। ठीक है, विच स्टॉक्स टू इन्वेस्ट इन नाउ, ऋषि खन्ना जी पूछ रहे हैं। ठीक है सर, तो बने रहिए सेशन में, आगे चल के बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। आगे चल के मैं बता देता हूँ कि इसके बाद में ऐसा 3-4 स्टॉक्स भी डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, जो कि आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है आगे चल के। और ऐसा एक मैं सेटअप भी बताऊंगा, ताकि जो जॉब जॉब प्रोफेशनल्स है, जो कि ऑफिस गोअर्स है, वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग अपना अ, वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो लोग, सॉरी, उस सेटअप को यूज करके थोड़ा सा अच्छा आपको रिटर्न्स मिल सकता है। इनफैक्ट उस सेटअप का जो सिनेरियो है, बहुत सिंपल सा सेटअप है, रेडीली अवेलेबल है विद एवरी ब्रोकर एंड एवरीथिंग। एंड उसको यूज करेंगे तो आपको किसी भी एल्गो से आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। आपको किसी फिर इन्फ्लुएंसर के पास, किसी किसी बड़े ना पंडित जो है, जो बड़े बड़े नामचीन पंडित जो दिखाता है बहुत कुछ, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यू कैन अर्न ऑन योर ओन, जो सेटअप मैं बता के दूंगा। ठीक है, नाउ ठीक है, तो इसके बाद क्या हमें करना चाहिए, क्या करना चाहिए? ओके, डू दीज टू गेट गुड आरओआई फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट्स। पहला, यूज करेक्ट फिल्टर्स टू सिलेक्ट राइट स्टॉक्स। ठीक है, आरओसी जो सिलेक्ट करेंगे मोर देन 16% का होना चाहिए। आरओई मोर देन 15% का होना चाहिए। कोशिश कीजिए क्या कि पीई कंपैटिबल मिले आपको, कंपेयर टू इंडस्ट्री पीयर्स, उस कंपनी का जो इंडस्ट्री का कंपिटिटर्स है उससे थोड़ा सा सस्ता मिले पी। ठीक है, ट्राई टू फाइंड बिजनेस विद हाई ऑपरेटिंग मार्जिन्स और इंप्रूविंग ऑपरेटिंग मार्जिन्स ईयर ऑन ईयर। जो बिजनेस हाई ऑपरेटिंग मार्जिन्स पे खेल रहा है, उनको सिलेक्ट कीजिए, उनको देखिए। ठीक है, उनको फाइंड आउट कीजिए, क्योंकि मार्जिन ही सब कुछ होता है मार्केट में। प्रॉफिट मार्जिन गिरा तो चाहे आप प्रॉफिट करते रहो, लेकिन मार्केट आपको भाव नहीं देगा, प्राइस आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, रिमेंबर, गुड बिजनेसेस ऑलवेज एंजॉय प्रीमियम पी रेशियोज। ओके, गुड बिजनेस जो होता है ना, जो कि अच्छे बिजनेसेस होता है, उनका पी रेशियो हमेशा प्रीमियम होता है। क्यों? बिकॉज दे हैव गॉट गुड मार्जिन्स, इंडस्ट्री लीडर्स होते हैं और मार्केट लीडर्स भी होते हैं। उनका जो कॉस्ट एफिशिएंसी होता है बिजनेस का, वो सबसे अच्छा होता है। तो अगर आपको पी रेशियो ज्यादा दिखे, तो इसका मतलब ये नहीं कि एक्सपेंसिव हो गया वो स्टॉक। इसका मतलब हो गया कि रिपीटेडली वो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, उसका बिजनेस ग्रोथ बहुत अच्छा है, ऑपरेटिंग मार्जिन बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अ, दीपांजन सिल, ओके सर बोल रहे पेड सर्विस, सर प्लीज होल्ड ऑन, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलेगा बहुत कम समय में, आई प्रॉमिस यू। रिमेंबर गुड बिजनेस वालों। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अभी आप कोई भी एस्ट्राजेनेका का चार्ट खोल के देखिए। एस्ट्राजेनेका इज ट्रेडिंग एट अ पी ऑफ मोर देन 100। बट अगर कोई बोलेगा कि एस्ट्राजेनेका वैल्यूएशन वाइज बहुत एक्सपेंसिव है, इट इज, आई डोंट एग्री विद इट, बिकॉज उसका बिजनेस ही इतना अच्छा है एंड इट्स सुपीरियर क्वालिटी बिजनेस,
ठीक है, वर्ल्ड वाइड बिजनेस है, एंड इट हैज गॉट वेरी वेरी गुड बिजनेस, वेरी स्ट्रॉन्ग बिजनेस, एंड इट इज दैट प्रीमियम एडवांटेज दैट दिस कंपनी हैज। एंड अगर आप एस्ट्राजेनेका का चार्ट देखेंगे तो आपको अच्छा एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगा आपको आगे के दिनों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी आपको दिया मैं, तो इसका चार्ट जरूर देखिएगा आप। Stick to market leaders or industry leaders because they command cash with healthy cash flow statement. कैश फ्लो स्टेटमेंट पे नजर रखिए, उसका प्रॉफिटेबिलिटी तो देखना है, ठीक है, वो प्रॉफिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ज्यादा कर रहा है कि कम कर रहा है, वो सब ठीक है, चलता रहेगा वो। लेकिन आपको देखना क्या है, आपको देखना है उसका क्वार्टर ऑन, उसका जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो देखना है। ठीक है, मेरे ख्याल से गोदरेज का कुछ एक स्टॉक है, गोदरेज इंडस्ट्रीज, आप देख लीजिएगा मे बी। उसका उसका अगर देखेंगे, अगर बैलेंस शीट देखेंगे, अगर प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे, हमेशा प्रॉफिट में है कंपनी, लेकिन चलता नहीं है स्टॉक, क्यों? उसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखिएगा और उसका कैश फ्लो स्टेटमेंट देखिएगा, कंटिन्यूअसली नेगेटिव है। इसका मतलब ये होता है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब होता है कि जो कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रहा है ना, वो रिटेन नहीं कर पा रहा है, वो रिटेन ही नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो फिर कंपनी कहाँ से प्रॉफिट में हुआ? दैट इज वर्चुअल प्रॉफिट ओनली, ओनली दिखाने के लिए प्रॉफिट है, लेकिन असल में कंपनी लॉस में है। ठीक है, इसके बाद क्या करना चाहिए? ट्राई टू इन्वेस्ट इन लाइन विद गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट पॉलिसीज को पढ़ना बहुत जरूरी है, गवर्नमेंट पॉलिसीज का अंडरलाइंग मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे नेक्स्ट 5 to 10 years गवर्नमेंट का पुश क्या रहने वाला है, किन सब सेक्टरों में लेने वाला है? एक तो रेलवे सेक्टर बहुत भाग चुका है, ग्रीन एनर्जी सेक्टर बहुत भाग चुका है, डिफेंस सेक्टर बहुत भाग चुका है। लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा करेक्शन आता है, लेकिन इसमें अगर थोड़ा बहुत करेक्शन आता है, देन दीज स्टॉक्स विल बी लाइक ह्यूज बाई। राजन ठाकुर जी बोल रहे हैं, सर इफ ओवरऑल कंपनी हैज, सॉरी सर, इफ ओवरऑल कंपनी हैज गुड फंडामेंटल्स देन वी कैन इन्वेस्ट इन इट। नहीं, देखिए फंडामेंटल्स तो रिलायंस का भी अच्छा है, बहुत सारे ऐसे कंपनीज है, मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर बोल सकता हूँ, फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है, ब्रिटानिया बोल सकता हूँ आपको, बहुत स्ट्रांग है। आपको और भी कोई स्टॉक बता दीजिए, आपको मैं बता सकता हूँ कि फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग स्टॉक है। ठीक है, बट हर जगह पे इन्वेस्टमेंट नहीं चलेगा, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि वो मार्केट के हिसाब से भाग चुका है अभी। अगर ब्रिटानिया बोलेंगे भाग चुका है वो पकड़ने का दिन नहीं रहा। हाँ, ये देखिए, अब मारिको को देखिए, मारिको थोड़ा सा ठीक लग रहा है, मारिको को भी देख सकते हैं, फंडामेंटली वेरी स्ट्रांग बिजनेस। ठीक है, अमृतांजन है, अमृतांजन को देख सकते हैं, अमृतांजन इज वेरी गुड स्टॉक। ठीक है, उसका कैश फ्लो बहुत अच्छा है, स्ट्रांग कंपनी, गुड बिजनेस, गुड प्राइसिंग एडवांटेज है उसका। ठीक है, बाकी बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स है जो कि रनअप दे चुका है। now you need to wait on these sectors, but in spite of these, there are sectors that will give you money, will give you returns. Okay, as a buyer you will always have power to bargain, so price negotiation आपके लिए बहुत जरूरी फैक्टर रहेगा। इस मार्केट में जो सबसे अच्छा प्राइस पे लेने का हिम्मत या पेशेंस रखेगा, वही सक्सेसफुल हो सकता है। ठीक है, आज की डेट में अगर कोई स्टॉक 10% गिरता है, अगर आपको लगता है कि नहीं इसको बाई कर लेना चाहिए, यू आर रॉन्ग, लाइक। ठीक है, आप यकीन मानिए, अगर यहाँ पे फंसे आप लोग, तो आपका पोर्टफोलियो विद इन 3 to 4 months आपका पोर्टफोलियो 30 to 40% डाउन में दिख सकता है। जो लोग कोविड के बाद इन्वेस्ट करना शुरू किया है, उन वो लोग कभी कभी रिसेशन देखा नहीं है, कभी क्रैश देखा नहीं होगा। ठीक है, अभी तक सिर्फ रैली दिखा है। बुल मार्केट क्रैश जब आता है ना, तो बहुत अच्छे अच्छे लोग हिल जाते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे लोग हिल जाते हैं, इनफैक्ट हमारे देश के सबसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी हिल जाते हैं। सो हमेशा याद रखिए कि जो भी बाई करना है, यू शुड हैव द कैपेसिटी
टू निगोशिएट दैट प्राइस। प्राइस आना चाहिए आपके अफोर्डेबिलिटी के रेट पे, तभी बाई करना चाहिए। कंप्लीट कैपिटल यूज मत कीजिए, ठीक है। फेज वाइज बाई करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। यस सर, राजन जी बोल रहे, सर एज यू सेड दैट गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन सम पर्टिकुलर सेक्टर, सो कैन वी फाइंड सम गुड कंपनीज? यस, डेफिनेटली बताऊंगा, मैं बताऊंगा, ठीक है। मेरा ये सेशन रखने का ये मतलब नहीं था कि आपको सिर्फ स्टॉक्स बता दूं। स्टॉक्स तो आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। आप खोलो ना, टीवी खोलो, यूट्यूब खोलो, देखो ना, आपको हजारों स्टॉक्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। स्टॉक्स बताना नहीं है, स्टॉक्स बताना तो बताऊंगा मैं, बट द आइडिया बिहाइंड अरेंजिंग दिस सेशन इज टू अप्राइज रिटेल ट्रेडर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स, दैट दे शुड नॉट बी कैरिड अवे नाउ। थोड़ा सा मार्केट गिरा है, और मार्केट गिर सकता है, लाइक 5%, 10%, लेकिन आपको घुसना कहाँ है आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। आप अगर पता नहीं होगा किस प्राइस पे घुसना है, तो आप गलती कर बैठोगे। तो यहाँ पे हेल्दी प्रैक्टिसेस के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा, अभी क्या करना चाहिए। दिस इज लाइक सिट बैक एंड सी फ्रॉम द स्टेडियम की मैच कैसे चल रहा है, ठीक है। ट्राई टू रीड एंड स्टडी मोर अबाउट गवर्नमेंट आरबीआई पॉलिसीज। कीप अ ट्रैक ऑफ ग्लोबल मैक्रो डेवलपमेंट्स। ग्लोबल मैक्रो में डेवलपमेंट्स क्या क्या आ रहा है, स्पेशली रिलेटेड टू की कंपिटिटर्स, जहां पे हम एक्सपोर्ट पे आगे बढ़ना चाहते हैं, जहां पे हम ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहते हैं, एंड एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा तभी हमारा जीडीपी बढ़ने का वो सपना पूरा हो सकता है। एंड लाइक सो हमारे जो कंपिटिटर्स है, इमीडिएट कंपिटिटर्स, उन पे थोड़ा वॉच रखिए। लाइक कंपिटिटर्स लाइक चाइना, यूएस एंड यूरोप में क्या डेवलपमेंट्स चल रहा है, उसमें हम लोगों का जो बिजनेसेस है, जो बिजनेस हाउसेस है, उस पे भी इम्पैक्ट आ सकता है। थोड़ा सा उसमें भी हमको हमको क्या होगा, हमको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। To get the correct news, read NSE disclosures given by listed companies every day or at least twice in a week regarding latest developments in their businesses. जो भी न्यूज है ना, किसी बिजनेस चैनल पे जाके मत देखिए। लाइक ये न्यूज जो है, ये पब्लिक पब्लिक के पास अवेलेबल है। सेबी के रूल रेगुलेशन के हिसाब से ये जो भी न्यूज चैनल वाले दिखाते हैं, बाद में 2 दिन बाद दिखाते हैं, 2 दिन बाद बोलते हैं, 2 दिन बाद आपको न्यूज़पेपर में आता है। लेकिन जिस दिन होता है, ठीक है, जिस दिन होता है, जिस टाइम पे होता है, उसी दिन आपको वो न्यूज आपको सेबी आपको एनएससी की वेबसाइट पे मिल जाएगा, डिस्क्लोजर्स के रूप में। अगर किसी कंपनी को ऑर्डर मिलता है, ठीक है, हैवी ऑर्डर, छोटा ऑर्डर, बड़ा ऑर्डर, कुछ भी मिलता है, इट विल बी लाइक डिस्क्लोज्ड इन द सेबी वेबसाइट, सो यू कैन गो एंड चेक दैट न्यूज इन द सेबी वेबसाइट। हर एक दिन, एक बार रात को सोने जाने से पहले एक बार चेक कर लिया कीजिए, अगर आप दैट मच इंटरेस्टेड है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स को लेके, ठीक है। जो भी मैंने सिलेक्शन क्राइटेरिया अभी तक बताया, उसके वो अगर उस तरह से अगर आप स्टॉक्स प्रॉपरली सिलेक्ट कर लिए हैं, तो क्या करना होगा आपको, यू हैव टू वेट पेशेंटली, ओके, यू हैव टू वेट पेशेंटली, राइट। बी पेशेंट आफ्टर यू हैव सिलेक्टेड द स्टॉक्स प्रॉपरली। नॉट ऑल स्टॉक प्राइसेस राइज इमीडिएटली आफ्टर इन्वेस्टमेंट। पैसा लगाया और रॉकेट बन गया, हमेशा ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और सबसे मतलब इंपॉर्टेंट चीज है, फॉलो द करेक्ट पर्सन फॉर मार्केट गाइडेंस। मार्केट में गाइडेड होने के लिए करेक्ट पर्सन के तरफ आप देखिए, ठीक है। तो अभी ये तो हो गया हमारा, जो मैं जो मैसेज कन्वे करना चाह रहा था, ठीक है। नाउ देखिए, जैसे मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ, ठीक है, तो आई ऑल्सो हैव माई क्लाइंट्स, आई ऑल्सो हैव गिव देम एडवाइसेस, रिकमेंडेशंस। सो रिकमेंडेशंस का बेस क्या रहता है, क्या देता हूं मैं, ठीक है। तो देखिए क्या रहता है, मेरा जो फ्रेमवर्क रहता है, जो मैं फ्रेमवर्क यूज करता हूँ, ठीक है, वो क्या होता है, दैट इज द टीएफपी फ्रेमवर्क मैं बोलता हूँ,
T for technical analysis of the stock using chart patterns. जो चार्ट पैटर्न्स होता है उसको यूज करके फर्स्ट एनालाइज करना होता है स्टॉक को। देन क्या करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं बिजनेस का, कि वो स्टॉक प्राइस अगर राइज हो रहा है, कोई न्यूज बेस्ड तो नहीं है, कोई मैनिपुलेटेड प्राइस राइज तो नहीं हो रहा है, या जस्ट इन्वेस्टिंग का जो आ रहा है। विच सेक्टर नाउ अवेलेबल इन गुड वैल्यूएशन, बता रहे सर, बता रहे, बने रहिए सर। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द स्टॉक यूजिंग चार्ट पैटर्न्स। नेक्स्ट होता है एफ का मतलब फंडामेंटल एनालिसिस, बिजनेस का फंडामेंटल एनालिसिस, मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, मैनेजमेंट क्या एक्सपेक्ट करता है, उसका प्रॉफिटेबिलिटी क्या रहेगा, या बिजनेस आगे चल के क्या रहेगा, पहले क्या हेडविंड्स उसने फेस किया है, क्या प्रॉब्लम्स फेस किया है, और उसके कंपैरिजन में अभी आगे चल के क्या दिखते हैं मतलब कहाँ देख पाते हैं अपने बिजनेस को, तो उसका भी एक एनालिसिस करना जरूरी होता है। ठीक है, तो TFV फ्रेमवर्क, V इज लाइक वॉल्यूम प्रोफाइल। अगर लाइक प्राइस बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है, देन देयर इज नो यूज गोइंग इनटू दैट स्टॉक। ओके, वॉल्यूम मुझे चाहिए होता है किसी भी स्टॉक में एंटर करने के लिए। अगर वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है एंड प्राइस राइज नहीं हो रहा है, देन दैट इज द stock where you should be looking into, given your technical and fundamental analysis supports that analysis। ठीक है, जो पेड सर्विसेज के लिए कुछ लोग पूछ रहे हैं मुझे, तो यस, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेड्स देता हूं, रिकमेंडेड टू फेच एटलीस्ट 8 to 10% ROI विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस। शॉर्ट टर्म ट्रेड्स का 8 to 10% ROI रहता है। मीडियम टर्म ट्रेड्स का हमेशा 15 to 20% टारगेट रहता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म ट्रेड्स का बियॉन्ड 20 to 25% हमारा टारगेट रहता है। ठीक है, तो आज के लिए मैं आप लोगों को, इसके बाद आई विल बी लाइक गिविंग यू द फ्रेमवर्क, जिस सेटअप जो जो भी है वो दे रहा हूँ, एंड 2-4 स्टॉक्स भी मैं दूंगा जिसको कि आप अच्छी तरह से आप यू कैन गो थ्रू इट। ठीक है, तो आज के लिए, अभी के लिए, अगर आप लोगों को पेड सर्विसेज लेना है तो उसका भी मैं बता देता हूँ, वी हैव अरेंज्ड फॉर इट। ठीक है, सो all recommendations are given to clients in PDF format, which is digitally signed, date stamped, owing complete responsibility for the recommendations। ठीक है, फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए PDF फॉर्मेट में रिकमेंडेशंस दिया जाएगा, डेट एंड टाइम स्टैम्प डिजिटली साइंड रहेगा। Recommendations are made available to the clients through mail or WhatsApp in a personalized manner। ठीक है, and all the clients will have the option to get their position as per recommendations reviewed once in a month। कोई भी पोजीशन आप ले रहे हो मेरे रिकमेंडेशंस पे, तो वंस इन अ मंथ उसको रिव्यू करने के लिए one-on-one डिस्कशन रहेगा वंस इन अ मंथ। यू कैन बुक स्लॉट्स एज पर योर ओन कन्वीनियंस, आपको मैं वो स्कोप भी दे दूंगा, एंड यू कैन बुक योर स्लॉट्स फॉर one-on-one डिस्कशन मंथली वंस, राइट। इसके साथ जो भी मैं गाइड करता हूं, दैट इज फॉर विथ कैपिटल एलोकेशन, प्रॉफिट बुकिंग एंड एग्जिट। अगर एग्जिट करना है उस स्टॉक से, अगर हमारे हिसाब से नहीं चल रहा हो वो स्टॉक, उसको एग्जिट करना है, या कुछ हद तक जाके वो रुक गया है एंड उस पर कुछ भी परफॉर्मेंस हम लोग देख नहीं पाते, तो उसको एग्जिट करना पड़ता है, तो वो एग्जिट स्ट्रैटेजीज भी आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो इसका जो मेरा हाफ ईयरली प्लान है, दैट इज 30,000 प्लस GST रहता है। अगर अभी इस सेशन के दौरान कोई बुक करता है तो वी आर गिविंग राइट 30% फ्लैट डिस्काउंट। यूज कूपन कोड August 30, राइट। जो 1 ईयर का प्लान है, दैट इज 50,000 प्लस GST, तो उसमें भी 30% का डिस्काउंट दे रहा हूं, दैट इज कमिंग टू अराउंड 35,000 प्लस GST। यूज कूपन कोड Lucky30 टू गेट फ्लैट 30% डिस्काउंट। नाउ ये 6 months और
ऐसे देखने में आपको ऐसे लगेगा कि बहुत ज्यादा है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप उसको ब्रेक करेंगे, 35,000 एनुअली है, दैट इज लेस देन 3,000 पर मंथ। ओके, दैट इज लेस देन 3,000 पर मंथ, राइट। और अगर किसी भी कॉरपोरेट सेक्टर में आप जाएंगे, किसी भी कॉरपोरेट सेक्टर में आप जाएंगे, या कॉरपोरेट उसमें भी लेने के लिए जाएंगे, तो उसमें आपको इसी रेट में इसी रेट में आपको मंथली एक रिकमेंडेशन देंगे, ठीक है। और हाफ ईयरली, जो मेरा एनुअल चार्ज है वो हाफ ईयरली चार्ज होता है उनका, अराउंड 30,000। एंड उसमें भी आपको एक रिकमेंडेशन, अब हमारे पास जो है पूरा अनलिमिटेड स्टॉक रिकमेंडेशन, जितना अपॉर्चुनिटीज उतना स्टॉक रिकमेंडेशन, ठीक है। अभी बहुत लोग अभी पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं बहुत लोग कि सर मंथली प्लान। देखिए, इक्विटी में मंथली प्लान दे के फायदा नहीं है ना, फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, है ना, फिर आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। और मैं वो उन जैसे जो आपको दिखता होगा ना वो टेलीग्राम चैनल पे, ये ऐसे नहीं करता हूँ मैं, ठीक है। तो मेरा वो नहीं रहता है कि इसको अभी बाई कर लो, चलो इसके अबव बाई कर लो और यहाँ पे निकल जाओ, ऐसा नहीं है, ठीक है। प्रॉपर स्ट्रैटेजी रहता है। और मैं अभी तक हमारे क्लाइंट में, मेरे पास HNI क्लाइंट्स भी है, NRI क्लाइंट्स भी है, एंड अभी तक जितने भी सेगमेंट्स में, सेक्टर्स में ब्रेकआउट आया है, उससे पहले मैं बैठा रहता हूँ उस सेगमेंट में, ठीक है। तो ब्रेकआउट के बाद घुसने का कोई मतलब नहीं होता है मेरे हिसाब से। तो एज पर माय रिसर्च, ब्रेकआउट होने से पहले या ब्रेकआउट होने के बाद जब कंसोलिडेशन चलता है तब घुसता हूँ, जो कभी कोई नहीं घुसता है। और मैं इस हिसाब से मैं 1 महीने में कोई रिजल्ट ही नहीं दे पाऊंगा, ठीक है जी। तो यस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेरे ख्याल से रंजीता विल कैन गाइड यू थ्रू थ्रू इफ यू वांट टू बाय परचेज द प्लान, ठीक है। यू वांट लाइक स्टॉक टिप्स, राइट? ठीक है, ओके, आई विल स्टॉप शेयरिंग दिस, आई विल स्टॉप शेयरिंग दिस, जस्ट वेट फॉर सम टाइम, जस्ट गिव मी 2 minutes। देखिए, अभी जो सेक्टर्स लाइमलाइट पे है ना, सबसे पहले ना अच्छे फंडामेंटली स्टॉक्स चुनिए, ठीक है। आई विल शेयर माई स्क्रीन वंस अगेन। आई विल शेयर माई स्क्रीन वंस अगेन। ठीक है, मेरा पहला स्टॉक जो है आपके लिए वो है डॉक्टर रेड्डीज, ठीक है। डॉक्टर रेड्डीज है पहला स्टॉक। करंट प्राइस 6964 का चल रहा है, राइट। ROCE देखिए 26.5%, ROE is 21.54%, and stock PE is at 20.9%. हाली सॉरी, stock PE is at 20.9. It's at a great valuation, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अगर पीयर कंपनीज को देखिए तो देखिए यहाँ पे सारे कंपनीज का ऑलमोस्ट 30 के ऊपर ही है, एक्सेप्ट औरबिंदो फार्मा, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं पी रेशियो, अगर देखेंगे तो इट्स बिलो इट्स मीडियन पी ऑफ 24.3। प्राइस में देखने जाएंगे तो देखिए यहाँ पे प्राइस में आपको एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला होगा। सो इट इज अ गुड स्टॉक फॉर इन्वेस्टमेंट। और ये जितना डिप ले, करीब 6,700 तक भी डिप ले, तो यू कैन बाई 6,500, 6,600, 6,700 के पास अच्छा डिमांड जोन है, यहाँ पे बाई कर सकते हैं। अभी करंट आपको करंट इसमें रेंज में भी बाई कर सकते हैं, तो दिट इज ए गुड स्टॉक, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, एक मैंने स्टॉक आपको दे दिया था ऑलरेडी,
एस्ट्राजेनेका, तो मैं उसको डिस्कस और नहीं कर रहा हूँ। एस्ट्राजेनेका के बाद आप देख लीजिए अपोलो टायर्स, ठीक है। जस्ट लुक एट अपोलो टायर्स, अभी देखिए आप यहाँ पे, ठीक है। मार्केट कैप अराउंड 34,000 है, स्टॉक प्राइस 537 है, book value is 219, so it is at a fairly very good book value. Dividend yield is very good, 1.12%. It is very good dividend yield. ठीक है। स्टॉक पी इज एट 19.5, ROC 16.4 एंड 13.2% इज ROE। ओके, सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको अच्छा दिखेगा, यहाँ पे देखिए, इट्स इन लाइक बहुत अच्छा जगह पे है, बहुत अच्छा लेवल्स पे भी है। 500 से 550 का लेवल बहुत अच्छा लेवल है, आप लोग एक्यूमुलेट कर सकते हैं यहाँ पे। एंड यू कैन नो 536 अभी भी अच्छे सपोर्ट जोन पे है, तो इसको आप बाई कर सकते हैं। अच्छा बिजनेस रहेगा इसका आगे चल के, ठीक है। इनका मैनेजमेंट का जो कमेंट्री है वो भी अच्छा है अपने बिजनेस के लिए। एंड देयर हैज बीन सम हेडविंड्स इन द लास्ट 2 क्वार्टर्स लास्ट ईयर, लेकिन वो पिकअप करना शुरू कर दिया है बिजनेस थोड़ा सा, तो ये एक अच्छा स्टॉक मिल सकता है आपको, सही आपको वैल्यूएशन पे मिल सकता है। नाउ हम लोग नेक्स्ट पे देखेंगे आयन एक्सचेंज, ठीक है। आयन एक्सचेंज को देख सकते हैं आप, like ROC is 27%, ROE is at 21%, P at 50%, करंट प्राइस 707, बहुत अच्छा कंपनी है, इसको आप देख सकते हैं। इट इज इन लाइन विद द वाटर मैनेजमेंट, जो भी पॉलिसीज अब रिगार्डिंग पुश रहेगा अभी गवर्नमेंट का, उसके हिसाब से ये कंपनी बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दे रहा है अभी एट प्रेजेंट, बहुत अच्छा वैल्यूएशन पे है, यू कैन गो फॉर इट, ठीक है। यहाँ पे देखिए सारे स्टॉक्स ऑलमोस्ट, एल्कॉन इंजीनियरिंग अभी स्प्लिट हुआ है, इसको भी देख सकते हैं आप। एल्कॉन इंजीनियरिंग इज वेरी गुड, बट वाटर मैनेजमेंट पे नहीं है। अगर वाटर मैनेजमेंट में देखेंगे तो 706 पे ये जो 50 PE इज गुड, ठीक है। वाटर मैनेजमेंट में एक वेबैग है, वेबैग बहुत अच्छा भाग चुका है, बहुत ज्यादा भाग चुका है, तो उसको लेने का कोई फायदा नहीं है अभी। सो आयन एक्सचेंज इज ए गुड स्टॉक विच यू कैन लुक एट बाइंग नाउ। अभी जो एक अच्छा मोमेंटम जिस स्टॉक को मिला हुआ है इज दैट इज क्लीन साइंस। ये देखिए ROC देखिए 29.5%, ROE इज 22%, एंड स्टॉक पी इज एट 69.8%। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, कंपनी का जो बिजनेस है दैट इज इन सिंक विद गवर्नमेंट पॉलिसीज नाउ, जो बजटरी पुश है जो वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर, दैट यहाँ पे उसको एक एडवांटेज मिलते हुए दिख रहा है, और अभी ब्रेकआउट भी मिला हुआ है। इसको आप 1620 के आसपास अगर खरीदेंगे, 1620 टू 1640, दैट विल बी अ गुड गुड बाई, वेरी गुड बाई, ओके। इज देयर एनी रेफरेंस वेबसाइट और बुक टू, अच्छा एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद करता हूँ अभी, तो अभी अब आपका क्वेश्चंस थोड़ा ले लेते हैं। सो इज देयर एनी रेफरेंस वेबसाइट और बुक टू लर्न चार्ट्स? देखिए चार्ट्स लर्न करने के लिए ना, जो बिगिनर्स है वो आप ट्रेड व्यू को यूज कर सकते हैं, बट यूज लाइन चार्ट्स टू स्टार्ट विद। इफ यू आर अ बिगिनर देन ट्राई टू यूज लाइन चार्ट्स, ओके। लाइन चार्ट्स यूज कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा, अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा। आप कैंडल स्टिक पैटर्न्स पे बाद में जाना, आपको लाइन चार्ट पे आपको अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंसेस अच्छा दिखने को मिलेगा, बिकॉज शार्प जो कर्व्स है उसको आप काउंट करेंगे, उस पॉइंट्स को आप लेंगे तो आपको अच्छा एक बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस किसी का भी, एनी क्वेश्चंस यू वांट टू आस्क मी, यू कैन अनम्यूट एंड यू कैन आस्क मी, राइट। मैंने जो जितने भी क्वेश्चंस दिए, मतलब स्टॉक्स दिया, मुझे लगता है कि आपको अच्छा बेनिफिट देगा। उसमें से सबसे पहले लाइक आयन एक्सचेंज, डॉक्टर रेड्डीज, अपोलो टायर्स एंड क्लीन साइंस, और एक और दिया मैंने एस्ट्राजेनेका, एंड आवर प्लान्स आर एक्टिव नाउ।
if you want, you can subscribe to our plan. Discount is for this period only, tonight only. If you want to join, you can join. Links have been provided in the chat box. किसी का कोई क्वेश्चन, किसी स्टॉक को रिलेटेड, स्टॉक रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपके पास, या कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं आपको इन्वेस्टमेंट्स लेके, सो आई कैन नो आंसर देम, जस्ट हैव बिट ऑफ टाइम लेफ्ट. नमस्ते सक्सेना जी. नमस्ते सर. हाँ, मैं देवांजन शील बोल रहा था. हाँ हाँ बोलिए. बोल रहा था मैं RVNL लिया है 66 में. हाँ ठीक है. पकड़े. और इंडियन कॉर्पोरेशन लिया है 78 में. कौन सी ये दोनों क्या कॉर्पोरेशन? रख दूंगा, नहीं तो सेल कर दूंगा अभी. कौन सी कॉर्पोरेशन? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 78 में लिया हूँ. हाँ ठीक है, पकड़े रहिए, कोई प्रॉब्लम ओके. नहीं है. और RVNL लिया हूँ ओनली 66. हाँ ठीक है, वो ये लॉन्ग टर्म स्टॉक्स है. अभी आपको 30-40% डाउन भी दिखेगा तो भी प्रॉब्लम नहीं है. क्या प्रॉब्लम है उसमें? ओके. मैं जब 600 क्रॉस कर गया तो मैं सोच रहा था RVNL बेच देंगे. ऑलमोस्ट 10 टाइम्स हो गया. देखिए, अच्छा. आप थोड़ा सा बुक करना चाहते हैं तो एक स्ट्रैटेजी यूज करो, बुक कर सकते हैं अभी. और बुक करने के बाद यू वेट, वो जब वो गिरे ना, गिरने के बाद जब रिकवर होना शुरू हो तब आप परचेस कर सकते हैं. बट अदरवाइज कितने क्वांटिटी है आपके पास? 100 दोनों ही 100 करके. बस होल्ड करते रहिए, क्या प्रॉब्लम है. ओके. ओके. और एक तो आप है IDBI बैंक. आप वो आप मैंने आप आंख बंद करके 5 साल RVNL और ये जो है ना PSU स्टॉक आप होल्ड कर लीजिए, अगर इफ ओके. यू हैव परचेज इट एट अ लोअर रेट. जो अभी परचेज ओके. किए उनके लिए नहीं है, ठीक है. और एक तो और लिया है IDBI बैंक 50 रुपया में, वो भी 100. अरे वो अभी छोड़ दीजिए, वो रहने दीजिए. रहने दे. ठीक है. ठीक है. ओके. ओके. नेक्स्ट थैंक यू. 5 इयर्स के लिए छोड़ दीजिए वो. ओके. ओके. थैंक यू वेरी मच. थैंक अभी वो उसको बार बार देखने का जरूरत नहीं है, आप भूल जाइए उसको यू. कि मैं लिए थे देखता नहीं कभी. हूँ. मैं सालों में एक बार देखता हूँ. सालों में एक बार. बस आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है अभी. ओके. ओके. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. हम्म. और सर, सर आपका व्हाट्सएप नंबर मिलेगा तो अच्छा होता. हाँ, यू कैन कांटेक्ट दिस ट्रेड बॉक्स का, आप कांटेक्ट कीजिए उनके मेल बॉक्स में, ठीक है. तो हाँ ठीक है. यू कैन यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन, ठीक है. ओके. ओके. हाँ. Ranjita, can you drop in the mail ID of this trade box live trade box? Sure, sir. Yes, Yeah, yes. sure, sir. Why not? और कुछ क्वेश्चन है किसी का भी Hi, कुछ भी? Mr. Vinit. You can hear me? Who is this, sir? This is Aditya speaking. Yes, Aditya. You just wanted an opinion. Recently, I read in the media there's a IPO is coming up of Brainbees First Cry. Any opinion? See, I won't go for any new tech company, okay, right now. Okay. Don't go for any, like First Cry. I don't know what valuations it is, and SEBI research analysts are not supposed to talk about IPOs basically. So Acha. company is good, okay, but I don't know what is the valuation at which they are bringing the IPO at. It might be looking good, like for IPO investment, you want 10%, 15% might give you, okay. But for a long term, I don't think this is like the correct situation to invest in an IPO. Okay. Okay. So stay put with strong, fundamentally strong stocks like Asian Paints. एशियन पेंट्स का मूव अभी स्टार्ट हो रहा है. एमी ऑर्गेनिक्स, एशियन पेंट्स, और भी ट्रेड आइडियाज आप लोगों को दे रहा हूँ. एमी ऑर्गेनिक्स इज गुड, वेरी गुड स्टॉक, बिकॉज इट इज लाइक it is also a bit into a pharma contract manufacturing भी है उनके पास केमिकल भी है, केमिकल बिजनेस भी है, जो कि इट्स अ प्रॉक्सी टू दी EV सेक्टर. सो बैटरीज बनाने के लिए वो केमिकल्स की जरूरत होती है, ठीक है. तो Okay. you can look into it. Ami Organics is available at a very good price right now. ठीक है. Galaxy. Hello. Hello. Hello.
Yes, Ranjita, you can hear me. Yeah, Ranjita, you're audible. Yes. Just let her to finish. Sir is still giving recommendations, right? Just wait. So you can see like Ami Organics, Galaxy Surfactants, Asian Paints is making a move. ठीक है. Pharma sector में see Ajanta Pharma, Cipla is looking good, right? Cipla is looking good, but Ajanta Pharma or Aurobindo Pharma has already moved. So you can look at Divi's Lab and again Divi's Lab into contract manufacturing. It is also looking good. Dr. Reddy's is at a very good valuation. You can go for it, Dr. Reddy's. Even if it like sinks 10%, 15%, 20%, you can go for it. You can accumulate it, keep accumulating it. It is a great stock. अभी हाल ही में उन्होंने यूएस में ओवर द काउंटर एक एंटी टोबैको एक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग एंटी टोबैको प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने वाले एक कंपनी यूएस मार्केट में परचेज किया है. Like that will help them, gain market share in this segment. Okay. Read AL books to learn charts. मैंने charts books से learn करना मुश्किल है, See, you have to. I never read books to learn charts, right? चार्ट्स में अगर आप लाइन चार्ट्स यूज करो ना, उसमें आपको डिमांड जोन, आपको सप्लाई जोन मिल जाएगा. नाउ ओके, जो मैं सेटअप देने वाला था, राइट, just a moment, I'll give you that setup for all the office goers. Basically it is very helpful, so let me show you. Just give me a moment. Sorry. Just a moment, I'll give you that setup. I think this setup will help you beat even the best of algos in the market. वो algos खरीदने का जरूरत नहीं पड़े, कोई बेचने आएगा तो आप उसको बता सकते हो. ठीक है. Now I'll give you another market, another stock recommendation. Okay. So let me share this screen with you once. Just a moment. Okay, I'll share this. Can you see my screen? Yeah. Okay. Yes, sir. So I'll put see common indicators. I'll just modify them. Okay. This is like super trend. Okay. Putting super trend, then putting what? Selecting pivot points standard. Okay. Now it is looking like this. Like, see. Can you see it? This is the weekly chart of Nykaa. Okay. Right. I'll close this pivot points first. Okay. To just let you know. Go to super trend. See, the length is like 10 over here. Clear this. Take it into 7 and factor is 2.94. Okay. Use this factor. Sir, there is some background noise, sir. Can you please mute? Please, can you mute? Shilpi ji. Hello. See, now I have changed the settings to length to 7 and factor to 2.94. Okay. Yeah. So this is like, you can see this, right? Hello. Yeah.
Put it in the chat box if you can see this. Yes, sir, we can see. We can see now. Yeah, so weekly, see super trend. If you see it over here, there is given a breakout in the super trend. If the breakout is with volumes, consider it as an entry point above it. Okay. See, the breakout is with volumes in Nykaa. So this is the entry point above it, and this green line, that is 154, it will be your stop loss. Below closing below this on a weekly or daily basis, since you are looking at it on a weekly chart, so your stop loss will be on a weekly basis. Okay, if the stock falls below 150, say suppose round figure 150, okay, so this is going to your stop loss, your exit. And this, if this crosses, like, see, look at it, it went down to 150 levels and then it retraced back. Any stock you pick, whenever it has given, right, whenever it gives you, and whenever, if you want like swing trade or positional trade, go to 30 minutes chart. Okay, go to 30 minutes chart and you will like see over here, this is like, here Nykaa had given 178 a breakout. So Nykaa went up to like same mode, same setup. Nykaa went up to where? Like 202. So that is quite a big amount, almost 20%, right? So if you want your targets, you can set your targets. If you don't know right price action, okay? If you don't know price action, then you can set your targets using pivots points. Okay, look at this. Look at this. Right? You can set your targets at pivot points. Market is definitely going to take hard stop at pivot points. You can book your profits phase wise. This can be your positional trade instrument also. If you are a frequent trader, you can use this. See over here, 30%. Oh, sorry, 30 minutes chart. Here there is a breakout. Above this, you buy. Okay, 199,208, then it moves. If you leave it, like, stop loss will be the green line only. 190, take 190 on a half hourly basis. Okay, so this will be your stop loss. If it closes below 190 on a half hourly basis, then you exit. So this is like a position trade. Okay, you can take advantage of this. And any stock like this was like thing. Let me show you another. Okay. Let me show you another one. Like, let me tell, like, Infi. Okay. I'll show you Infi. Can you see Infi? Yes, sir. Okay. See, look at it. 30 minutes chart, weekly chart. This is weekly chart. Okay. Look at this. Once it gives a breakout from here, no matter where it is, you don't need to understand anything. You just take a trade over here, 1639. It went up to, see, look at this pivot points. It took a hard stop, right? So 1903. So 1641 to 1903, 1900 levels. 300 points straight away you got. So I'll stay put until it breaks below this green line. I'll stay put in this stock, whatever. Even if the market crashes, I'll stay put. Until this breaks below 1600 levels on a weekly basis, or on at least on a couple of day basis. Couple of days, it should give a closing below 1600, I'll exit. This is the best way of investment, right? This is the best setup for a job holder. If you follow this, you don't need to follow any algo. Okay, this setup has beaten all kinds of algo. Look at this. Like Infi, it had given like what? Just a moment. Infi had given a breakout at on 22nd June 20. Okay, when market was at right very WW situation. Okay, so if you had taken an entry over here, right, at what levels it is, you can see at 755 levels, steady
steady rise. Here it broke below this green line, you exit. Give you an exit also at 2x plus. Okay, this is the best setup. These are the algos that algo houses nowadays, no, they manipulate and they create algos for themselves and to buy fool people around, right? You must have seen there are several algo platforms, but how many of you see that they're so successful? Because you don't need any rocket science to be successful. Okay, I am showing you another one also. Look at it. The last one, Biocon. Look at it. Simple example. Biocon will show you where it is now. Look, Biocon. Biocon gave a breakout. 292 you enter. Where are you now? 379. See, dot to dot pivots. Dot to dot pivots. You just put an RSI to understand if it is overbought or not. So whenever it is becomes overbought on weekly charts, you take a breather. Okay, you can exit. Or you wait for this to break 287, below 280 it goes, you exit. Or if you are a safe trader, you will exit over here when RSI had reached 74, 75 on weekly charts. That was touching this R3 at that time pivot. You don't need any rocket science to earn money from the stock markets. Understood? Yes, sir. Can you please explain the RSI? I'm very new to this, sir. RSI is relative strength index. Okay, it shows the strength of the stock, right? And so like whenever it is like 60 to 60, it is above 50, it goes, it shows that the strength is coming back to the stock, and above 70, 75, it is like overbought. बहुत ज्यादा खरीद लिया है लोगों ने और आप इसको छोड़ दो अभी, इसका मतलब यही होता है। और अगर 20 के नीचे जाता है, ठीक है, 20-30 के नीचे जाता है तो ये ओवरसोल्ड टेरिटरी में आ रहा है, तो आप इसको बाई कर सकते हो। देखो यहाँ पे ये आया है 20 पे आया है ना बायोकॉन, हाँ है सर, ना, दिख रहा है ना, और हाँ ये देखो यहाँ से रैली स्टार्ट हुआ, दैट मीन्स दिस स्टॉक इज ओवरसोल्ड। यू कीप वीकली चार्ट्स फॉर दिस थिंग, ओके। यस सर, मतलब वीकली चार्ट्स देखिए less than 30. ओवरसोल्ड हो गया है, यहीं से मार्केट ऊपर गया है और कंटिन्यूसली ऊपर गया है। सो मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, किसी पंडित की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर स्टॉक सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है और अगर समझ में नहीं आ रहा है कि किस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप रिसर्च एनालिस्ट आप देख सकते हैं अपने लिए, ठीक है। मैंने भी अपना प्लान्स दिया है। इफ यू डोंट हैव दैट टाइम, डोंट हैव दैट एनालिटिकल स्किल्स, you can always go for a research analyst advice. यस सर, सो लेस देन 30 पे बाय करने बोला आप। लेस देन 30 में तो बाय होता है, राइट? मतलब अगर अंडर ओवरसोल्ड होता है, ओवरसोल्ड, बाई नहीं होता है, ओवरसोल्ड होता है। ओके, ओके ओके सर। एंड व्हाट अबाउट पिवट सर? पिवट में क्या सेटिंग पीवोट आपका टारगेट्स है। देखिए पीवोट में ये पीवोट है, थोड़ा सा इसको आप यूट्यूब में देखिए, ओके। ये लर्निंग वीडियोस आप यूट्यूब में देखिए, ओके। क्योंकि ओके, ये सेशन में अगर मैं सिखाना शुरू नो कर नो नो दूंगा, नो, आई फिर जस्ट आपका ये रात हो जाएगा, रात को 12 बज जाएगा, नहीं ठीक नहीं है। सर, थैंक यू सो मच सर। हाँ सर, इज देयर सेटिंग वी हैव टू डू इन पिवट आल्सो लाइक यू हैव No, मेंशन्ड? no. Pivots, just select pivot point standard and that's it. एंड सेम फॉर आरएसआई आल्सो, राइट? RSI. RSI is just select RSI. बस कुछ नहीं करना है। ओके ओके सर। जाइए इंडिकेटर्स में RSI टाइप कीजिए और सिलेक्ट कर लीजिए बस, और वॉल्यूम रख दीजिए साथ में, ओके 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 सर। ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि वॉल्यूम राइज हो रहा है कि ठीक, ठीक है। यस सो सर। सो मुझे लगता है कि नाउ ये सेशन आपके लिए फायदेमंद रहा होगा, ठीक है। यस सर, डेफिनेटली So सर। investing around 1 hour has been good for you. It's not been a waste of time for you, hopefully. So kindly feedback जरूर दीजिएगा जो भी फॉर्म दिया है, and thank you very much. So we'll end the session now.
whoever wants to subscribe to my plans can do it, on Tradebox platform only. Yes, sir. Yes. Sir, how can I contact you if I want to contact? Please drop in your mails to this thing that it is given over here. I'll get the information on. I'll contact you, or the team will contact you. Okay. info@tradeboxlive.com. Okay, sir. Okay. And you can, even if you want, you can get my contact details from the SEBI website also. Okay, sir. Right. Right. Thank you so much, sir, for your time. और सर सर बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा आज का सेशन। और आई मस्ट से कि जितने भी लोग लॉग इन हुए हैं और काफी उनको टिप्स मिली है कि किस में जाना चाहिए, जो नया नया ट्रेड कर रहे हैं, जिनको डाउट्स हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, उस पे भी बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा आपने भेजा है, रिकमेंडेशन जो दी है हमें, और जो आपने बताया कि इस वाले पे जाना चाहिए और इसको खरीदना चाहिए और इसको नहीं खरीदना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नया नया जिन्होंने स्टार्ट करा है, उनके लिए तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा। इनफैक्ट मेरे लिए भी बहुत इंफॉर्मेटिव रहा है और अच्छा सेशन रहा। और हम पूरे अगस्त में इसी तरह एवरी सैटरडे संडे पूरा वेबिनार हमारा है बहुत सारे एनालिस्ट के साथ, और जिनके भी एक्सपर्टीज हैं सब हमने प्लान किया हुआ है। तो मार्क योर कैलेंडर इन दिस मंथ, अगस्त मंथ। तो आगे भी ऐसे मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको सारे कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल उनको ट्रेड बॉक्स से अवेलेबल हो जाएंगे। कैसे भी कांटेक्ट करना है आपको, किस रिसर्च एनालिस्ट से आपको कांटेक्ट करना है, सारी इंफॉर्मेटिव हमारी टीम वी विल प्रोवाइड यू। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल फॉर Thank you, Ranjita. Thank you, everyone. Thank you. Thank you all for joining us today for webinar. We hope you found the insight and strategies shared by our expertise, and hope it is valuable and informative. Before we close, I would like to thank you, Mr. Vineet, for sharing their expertise and knowledge with us. And to our audience, thank you so much, audience, for your active participation and engaging questions. Please share your valuable feedback on the form shared in the chat box. Also, we will also share the same with you over the email. Your feedback is really important for us. Don't forget to check our website tradebox.live.com for all market related information and directly from SEBI registered experts. Thank you again, and we look forward to having you join us in our future webinars. Thank you so much.